Hello friends, welcome back to Learn and Grow classes. Today we'll continue with the geography of class 8. You guys can see on my channel that first chapter's videos has been uploaded yesterday. So today I'll making the video of second chapter. The name of the chapter is Land, Soil, Water, natural vegetation and wildlife resources. So we'll continue with this chapter. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स, ठीक है, हाउ वी कैन कंजर्व आवर रिसोर्सेज, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड many more topics about resources like types of resources, ठीक है, natural resources के further types हमने पढ़े and many more. ठीक है, so now in this chapter we'll continue with the word resource, but resource on the behalf of land, soil, water, हमारी नेचुरल वेजिटेशन एंड हमारी वाइल्ड लाइफ को अब हम कैसे रिसोर्स मानते हैं उसके बिहाफ पे पढ़ेंगे. सो यहाँ पर एक दो स्टोरीज दी हुई हैं. फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट मम्बा which is live in Tanzania in Africa. ठीक है, she is living in a small village. ठीक है, very early in the morning she gets up and to fetch water. Okay, she has to walk a long way in the morning and return after few hours. She then help her mother. She basically do some daily chores works, but in basic story she wants to tell about their land. मतलब she thinks that their land is a significant resource for their families and for her livelihood, as they grow some maize and beans on it for tolling hard. ठीक है, आफ्टर टू मैनी ईयर्स, और मतलब वो पूरे साल का जो उनका जो एक फीडिंग है, उसकी फैमिली की फीडिंग है, वो किस पे थी, उस एक पर्टिकुलर लैंड पे डिपेंड थी. इन सेकेंड स्टोरी पीटर, द स्टोरी ऑफ पीटर, he tells about the rearing of sheep region in New Zealand where he lives, where जो उनकी जो फैमिली थी वो क्या रन करती थी, वूल प्रोसेसिंग, ठीक है, फैक्ट्री, जहाँ पर उसका लाइवलीहुड क्या था, शिप रेयरिंग, लाइफ स्टॉक या नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, करना. तो इन both the story we guys study Mamba and Peter stay in two different parts of the world and lead very different lives. This difference is water, ठीक है, the difference this difference is because of difference in quality of land, soil, water, natural vegetation and animals and the usage of technology. ये सब difference कैसे आता है when we are living in different world, in the part of a different worlds or in different countries, then our livelihood depends on several circumstances like क्वालिटी ऑफ लैंड कैसा है, सॉइल कैसी है, वाटर एप्रोप्रिएट है या नहीं, नेचुरल वेजिटेशन, ये सब चीजें. द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर. बेसिकली उन्होंने एक बेसिक डिफरेंस बताया कि जो अवेलेबिलिटी है उन रिसोर्सेज की उन जगहों पे, उसकी मदद से वो जगहें एक दूसरे से क्या होती हैं, डिफर होती हैं, डिफरेंट होती हैं. अब हमारा यहाँ से फर्स्ट टॉपिक शुरू होता है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज लैंड. नाउ land is among the most important natural resource. You guys can underline this in your books. Land is among the most important resource. It covers only about 30% of total area, or the earth's surface, and all parts of this small percent are not habitable. मीन्स वो ये कह रहा है कि हमारा जो अर्थ है, क्योंकि मे बी यू ऑल गाइज आर अवेयर अबाउट इट दैट अर्थ इज कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ वाटर, मीन्स 1/3 हमारी जो अर्थ है वो कवर्ड किससे है, वाटर से. तो बेसिकली लैंड कितना हुआ, 30% हुआ ना. तो लैंड हमारा क्या है, 30% है. अब 30% लैंड में हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट जो अर्थ का सरफेस है वो टोटल तो एरिया है, बट उसमें से कुछ ऐसा लैंड होता है जो कि हैबिटेबल नहीं है.
यूज नहीं कर सकते, बहुत छोटी परसेंटेज में है। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied circumstances of land and climate. Basically, कहीं तो population बहुत ज़्यादा है. अब, if we are living in India, then the population of India is about 140 करोड़, ठीक है। 140 करोड़ की हमारी इंडियन पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो नेचुरल जो क्लाइमेट है वो कि एक बहुत अच्छा है। एक मतलब 12 महीने का मौसम अलग अलग एक एक सेगमेंट में एक एक हमारा जो सीजन है वो डिवाइड है, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली तो क्या कह रहा है कि लैंड एंड क्लाइमेट की वजह से कहीं तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है बट कहीं बहुत लोअर होती है। द रफ्ड टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मीन्स सॉइल, द टॉपिंग ऑफ दैट, अगर हम टॉपिंग करते हैं पिज्जा के ऊपर टॉपिंग करना, मीन्स सॉइल जो होती है वो। स्टेप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, हमारे जो स्लोप्स है माउंटेन के, लो लाइंग एरिया सस्पेक्टेड टू वाटर, lodging, desert area, thick forest areas are normally sparsely populated और uninhabited। जहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होती है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता उस पॉइंट पे, वहाँ पे तो अनइवन ही होगी हमारी हैबिटेट, ठीक है। तो इसीलिए हम वहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं, अनइनहेबिटेड, क्योंकि वहाँ पर लाइफ कम है, अन मतलब की पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो कम है। प्लेन एंड रिवर वैलीज ऑफर सस्टेनेबल ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। बेसिकली जो प्लेन और रिवर वैलीज जहाँ आसपास होते हैं वो क्या हमें फॉलो कर, हमें क्या मिलता है उनसे, सस्टेनेबल लैंड मिलता है ताकि हम उस पर एग्रीकल्चर कर पाए और हम वहाँ पर रह पाए। तभी वो जो एरिया होते हैं वो क्या होते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा लैंड यूज क्या, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज लैंड यूज। लैंड यूज क्या होता है, लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, forestry, mining, building houses, roads and setting up of industries। ऑब्वियस है ना कि ये देखो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सी पिक्चर बनी हुई है सेल्सबर्ग इन ऑस्ट्रेलिया, कि ये कितना पॉपुलेटेड एरिया लग रहा है जहाँ पर हमने उस लैंड के ऊपर क्या क्या चीजें लगा रखी होंगी, फॉरेस्ट्री होगी, एग्रीकल्चर होगा और भी बहुत चीजें होंगी, ठीक है। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। हम इसको बेसिकली क्या टर्म करते हैं, लैंड यूज, क्योंकि हम बेसिकली क्या लैंड को यूज ही तो कर रहे हैं, अपने घर वहां बना रहे हैं, हमारा वर्किंग क्राइटेरिया वहां है, ठीक है। वी आर लिविंग ऑन इट, वी ट्रैवल ऑन लैंड, मतलब कि हम वी मूव ऑन लैंड, हम चलते उसके ऊपर हैं, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उसके ऊपर वर्क करते हैं। सो वी हैव टू मेनी यूजेस ऑफ लैंड, ठीक है। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड। अभी हमने पीछे दो स्टोरी में पढ़ा कि मम्बा जो थी वो लैंड कैसे यूज करती थी, फॉर देयर एग्रीकल्चर, गेजिंग करने के लिए, ठीक है। और पीटर क्या करता था, लैंड को शिप रियरिंग के लिए, और उनकी फैक्ट्री थी वूल फैक्ट्री, ठीक है। द यूज ऑफ लैंड इज डिफरेंट बाय अ फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन जो ऊपरी लेयर होती है, बिल्कुल टॉप लेयर होती है सॉइल की, उसको टोपोग्राफी बोलते हैं। यू गाइस कैन मार्क इट इन योर बुक्स एंड राइट इट्स मीनिंग ऑल्सो। सॉइल, उसके अंदर की जो सॉइल है उसके ऊपर डिपेंड भी करता है, क्लाइमेट कैसा है उसके ऊपर लैंड का यूज डिपेंड करता है, मिनरल्स हैं उस लैंड में उसके ऊपर डिपेंड करता है, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये तो सबसे मेन हमारा पर्पस है ये। कहीं क्या होता है, कई जगहों पे बारिश बहुत कम होती है तो वहां पे अलग तरह से हम लैंड को यूज करते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न्स। ह्यूमन फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं एक लैंड के यूज के लिए, लाइक पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी। ऑब्वियस है जहाँ पे आईटी सेक्टर्स हैं वो ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी की तरफ ही तो जा रहे हैं तो लैंड का यूज तो वहां पे भी हो रहा है ना। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज द प्राइवेट लैंड, कम्युनिटी लैंड। बेसिकली लैंड के जो यूजेस हैं वो दो तरह की ओनरशिप में डिवाइड है। यू गाइस कैन मार्क इट वेरी प्रॉपरली बिकॉज इसमें हमने टू क्लासिफिकेशन बताई है लैंड की, प्राइवेट यूज एंड कम्युनिटी, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। अब प्राइवेट लैंड क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल ओन कर रहा है,
यहाँ पे एक प्रॉपर उसकी एक लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय individual, whereas community land is owned by community for a common uses like collection of fodder. Fodder क्या होता है? लकड़े वगैरह, fodder कलेक्ट करना, fruits, nuts or medical herbs. The community land are also called common property resource. जो community land का another meaning भी है. This is the another meaning. ये क्या है हमारा अनदर मीनिंग है किसका? कम्युनिटी लैंड का. वो क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. ओनरशिप के बिहाफ पे अगर हम देखें तो प्राइवेट लैंड के होते हैं, तो नाम से ही क्लियर है कि जो एक इंडिविजुअल ओन करता है, दैट इज अ प्राइवेट लैंड. कम्युनिटी लैंड क्या हुआ? जो एक कम्युनिटी, बेसिकली उसको हम एक कम्युनिटी पर्पस के लिए ओन कर रहे हैं, फ्रूट्स, नट, फ्लोरा एंड फौना के लिए और बेसिक चीजों के लिए हम उसको एक कम्युनिटी मीन्स लोगों की भलाई के लिए उसको यूज करें. उसका क्या और अनदर नेम है? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. People and their demand are never growing, but the availability of land is limited. जो people की डिमांड है वो कभी खत्म नहीं हो सकती, बट जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है वो बहुत लिमिटेड है. ठीक है, 30% लैंड है, ठीक है, और पूरा वर्ल्ड उसके ऊपर डिपेंड है. द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. पीपल स्टार्टेड encroaching the common lands to build up commercial areas. encroaching means उनको डक करना, उन्हें छीन लेना, हत्या लेना, ताकि वहां पर वो बिल्ड क्या कर पाए? कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना पाए इन अर्बन एरियाज में. बड़े बड़े आप लोगों ने नाम, सुषमा एक बहुत ही बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे फ्लैट्स बिकते हैं, ये सब चीजें. and to expand the agriculture land in the rural areas. Today, the vast change in the land use pattern also reflect the culture changes in our society. Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are the most and major threats to the environmental because of the expansion of एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज. लैंड को हम बेसिकली ruined कर चुके हैं. ruined मीन्स खराब, बर्बाद कर चुके हैं. कैसे? हर जगह उन पे कुछ ना कुछ करते रहना. ठीक है, तो लैंड तो ऑब्वियस है ना, उससे हम हो गई, हम उसकी सोइल फर्टिलिटी भी नहीं देख रहे हैं, उसे बेमतलब में खराब करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं. ठीक है, हम उनको एक्सपैंड करने के चक्कर में, एग्रीकल्चर एक्सपैंड करने के लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करें, तो ऑब्वियसली उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसका जो वर्क है वो खत्म होता जा रहा है. सो अब आता है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स. अब हमें लैंड रिसोर्सेज को भी तो बचाना चाहिए इन फ्यूचर के लिए. हमें सस्टेनेबल लैंड डेवलपमेंट भी तो करनी पड़ेगी. सस्टेनेबल लैंड डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे? किसके लिए करेंगे? फ्यूचर जनरेशन के लिए. ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चेंज देखते हैं ओवर द टाइम में. टाइम के साथ साथ हमारा जो लैंड का यूज है वो कैसे चेंज होता है, अब खुद देखना. फर्स्ट इमेज में कच्चे घर हैं, कच्चा हाउस बना हुआ है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी हो रही है, तो लैंड बहुत अच्छा है, हेल्दी है, सॉइल बहुत अच्छी है. बट आफ्टर चेंज इन टाइम थोड़ा सा इनोवेशन हो गया, पक्के घर हो गए. फर्स्ट पिक्चर में अगर बुलक कार्ट यूज हो रहे थे, यहाँ पर ट्रैक्टर यूज हो रहा है. पक्के घर बन गए कच्चे हाउस की जगह. जहाँ पे पर्सन हल लेके चल रहे हैं वहां पे पर्सन ट्रैक्टर्स यूज कर रहे हैं, अदर मैनमेड इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं. किस लिए? सॉइल की फर्टिलिटी खराब करते जा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते जा रहे हैं. अब यहाँ से अगर हम थर्ड पिक्चर पे जंप करते हैं तो ये छोटी छोटी ग्रीनरी कहाँ रह गई? सिर्फ पार्क्स तक रह गई. प्रॉपर एक के ऊपर एक बिल्डिंग्स बन गई हैं. ठीक है, कार्स आ गई हैं, बसेस हैं, लाइट्स लग गई हैं, तो ये और हमारी हेल्थ को नुकसान कर रही है, और बहुत चीजें, लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो रही है. अब फोर्थ पिक्चर में तो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड हो चुका है हमारा एरिया. ठीक है, फैक्ट्रीज बन गई हैं, पॉपुलेशन ये देखो कितना है. यहाँ पे बहुत है ही नहीं पॉपुलेशन फर्स्ट इमेज में. सेकंड में थोड़ा थोड़ा आया, बहुत कम. ठीक है, ये देखो धुआं थोड़ा थोड़ा. उसके बाद थर्ड में थोड़ा और ज्यादा. फोर्थ में तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई, घरों में चार चार गाड़ियां हो गई, बहुत सारे ट्रैफिक्स हो गए. तो इसकी वजह से कैसे चेंज हो? अब हमें अपने लैंड को बचाना भी है. जो भी मैं बोल रही थी, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रो डिमांड has led to a large scale destruction of forest cover
एंड एरेबल लैंड। एरेबल मीन्स लैंड का जो जहाँ पर हमारी लाइफ रहती है, मतलब एरेबल लैंड जो हमारा एक्वेटिक लाइफ के लिए यूज होता है, हमने उस लैंड को भी हथिया लिया और अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ, जो हमारी पॉपुलेशन जो ग्रो होती जा रही है उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम अपने लैंड रिसोर्सेज को खत्म करते जा रहे हैं, एंड हैज क्रिएटेड a fear of losing this natural resources. Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides, ठीक है, हम लोग regular use of chemical pesticide fertilizers, also check on overgrazing are some the common method used to conserve natural resources. अब हमें natural land resources को conserve करने के लिए क्या क्या check करना पड़ेगा? Basically हमें एफॉरेस्टेशन तो नहीं हो रही कहीं, ये चेक करना पड़ेगा। लैंड का रिक्लामेशन मींस लैंड की सॉइल की फर्टिलिटी वापस लानी पड़ेगी। केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स को अवॉइड करना पड़ेगा यूज होने से। तो बहुत सारी चीजें हमें जिन्हें चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें ग्लॉसी में हमें एक वर्ड दिया हुआ है, द वर्ड इज वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय टेम्परेचर चेंजेस, फॉर्स्ड एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। वेदरिंग क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन करना। हमारी जो अभी मैं जब आपको सॉइल वाला टॉपिक करवाऊंगी उसमें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट इज वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? जब हमारी रॉक, हमारी जो बेसिकली हम एक्सपोज्ड रॉक को टेम्परेचर की वजह से जब हमारी सॉइल जो टूटना शुरू हो जाती है उसको हम बोलते हैं वेदरिंग होना। ठीक है, सॉइल जब खराब होनी शुरू होती है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज समझ में आया कैसे होंगे। अब चलते हैं हम सॉइल पे। सॉइल क्या होती है? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस, अंडरलाइन कर देती हूँ मैं, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल क्या होती है? जो हमारा सब्सटेंस होता है जो हमारे अर्थ के सरफेस को कवर कर रहा है, दैट इज अ सॉइल, मिट्टी। ठीक है, अब आप सॉइल को ये नहीं बोल रहे कि जिस रोड पे हम चल रहे हैं वो सॉइल है, नो। सॉइल क्या होती है? उसके थोड़े से अंदर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? टॉपोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, जो टॉप शील्ड होती है। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। Landforms determine the type of soil. Soil is made up of organic matters, minerals and weather rock. Weather rocks means टुकड़े, छोटे छोटे pieces of rocks। मैंने अभी बोला break down होना। ठीक है, found on the earth. This happens through the process of weathering. Weathering मैंने अभी आपको बताया exposed rock, जो टेम्परेचर और चेंजेस के, ह्यूमन एक्टिविटीज, प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत सारी चीजों की वजह से जो बनता है, फॉर्म होती है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ अब हमें केस स्टडीज दिए हुए हैं। लैंडस्लाइड, ये आपको खुद रीड करनी है। बेसिकली एक लैंडस्लाइड क्या होता है, यहाँ पे एक मीनिंग बता रखा है कि लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, ठीक है, डेब्रीज और अर्थ डाउन स्लो। ठीक है, ये बता रखा है क्या होता है, कैसे होती है। दे ऑफन टेक प्लेस इन अ कंजंक्शन विद अर्थक्वेक, फ्लड एंड वॉल्केनो। वॉल्केनो अर्थ की जब हमारी अर्थक्वेक्स आते हैं तब होता है। अ प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड। बहुत ज्यादा बारिश होना, आंधी तूफान आना, तो उससे भी लैंडस्लाइड हो सकता है। दैट कैन ब्लॉक द flow of river, or with some time the formation of river blocks can cause havoc to the settlement downstreams on its bursting. In the hilly terrain, landslide have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy position of a major concern. बेसिकली लैंडस्लाइड का एक वो बता रहा है कि व्हाट इज अ लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड कैसे होते हैं, ये सब चीज़ बता रहा है कि लैंडस्लाइड एक नेचुरल डिजास्टर है, किसी के हाथ में नहीं, कभी भी हो सकता है। बट हाँ, लैंडस्लाइड को रोका कैसे जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कम हो। ठीक है, हम अगर एनवायरनमेंट के साथ खेले नहीं, पंगे ना ले, मतलब पंगे ना ले इन द सेंस मीन्स आई वांट टू से कि हम अपने एनवायरनमेंट को कंजर्विंग करके यूज करें, बहुत ध्यान से यूज करें, तो लैंडस्लाइड्स नहीं होंगी। यहाँ पे एक छोटी सी केस स्टडी दी हुई है, ये आप रीड कर सकते हो बहुत इजीली। मिटिगेशन मैकेनिज्म। Advancement in scientific techniques have empowered us to understand what factors cause landslide and how to manage them.
सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड आर फॉलोज। यहाँ पे हजार्डस मैपिंग आ गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लाइडिंग, ठीक है, इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। मतलब वही चीजें जो मैंने अभी बताया कि आपको अपना बहुत अच्छे से अपना लैंड, जब हम अपने रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो लैंडस्लाइड नेचुरल डिजास्टर्स कम होंगे। मिटिगेशन मैकेनिज्म क्या है? एक साइंटिफिक टेक्निक है जो हमें बताती है कि हम कैसे लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं और कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हमने सॉइल की बना, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ये देखो मैंने आपको यहाँ पे मैं एक बताई थी, ये होती है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या होती है? जो बिल्कुल नीचे होती है, जहाँ पे पत्थर ही पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं। वेदर्ड रॉक मीन्स जिसमें कम पत्थर होते हैं, थोड़े से, पेरेंट रॉक से कम होते हैं। और ऊपर की जो सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सिल्ट मीन्स गीली मिट्टी, क्ले भी वही, सिल्ट मीन्स जहाँ पे थोड़े थोड़े कंकर टाइप होना, और क्ले मीन्स गीली मिट्टी। और जो ये ऊपर की जहां पर ये ग्रास बनी हुई है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। ये होती है हमारी ग्रोइंग सॉइल, जो ग्रो करती है। इट टेक 100 ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। इतनी सी सॉइल बनने में कहीं साल लग जाते हैं, और हम इतनी जल्दी, इतनी कम, मतलब कितनी फास्टली अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, एग्जॉस्ट करते जा रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या क्या है? द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर्स। हमारी पेरेंट रॉक कैसी है, वही हमारे कुछ फैक्टर्स, उन्हीं के ऊपर हमारे कुछ फैक्टर्स डिपेंड है जिससे कि हमारी सॉइल बनेगी। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, role of organic material and time taken for the composition of soil formation. All these differ from place to place. हर place का अलग अलग है। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा वो पढ़ लेते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो सॉइल को अफेक्ट करते हैं। पहला हमारा जो फैक्टर है दैट इज पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या है? डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड प्रीमेबिलिटी। प्रीमेबिलिटी क्या होती है? बेसिकली कंटेंट, हमारा जो उसका मेलेबिलिटी है, जो हमारी उस सॉइल की अंदर क्या क्या है, वो सब चीजें जो हैं वो एक पेरेंट रॉक पे डिपेंड करती हैं। उसके बाद आता है रिलीफ। एल्टीट्यूड क्या है? सॉइल का जो प्रोपोगेशन है वो क्या है, मतलब जो उसके अंदर चीजें हैं वो कैसी हैं, ठीक है। स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। फ्लोरा एंड फौना मैंने आपको बताया, फ्लोरा एंड फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब चीजें डिपेंड करते हैं, अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। क्लाइमेट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि क्लाइमेट कैसा है, रेनफॉल कैसी हो रही है, टेम्परेचर कैसा है, वेदरिंग क्या हो रही है, ह्यूमस फॉर्मेशन क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। डिग्रेडेशन मीन्स सॉइल को बढ़ाना, ठीक है, सॉइल इरोजन से उसको रोकना। Soil erosion and depletion are major threat to soil as a resource. Soil erosion means soil polluted होना, depletion means घट जाना. Both human and natural resources can lead to degradation of soil. Degradation means बर्बाद करना, ठीक है। Factors which lead to soil degradation are deforestation, overgrazing. Degradation means घटाना, मे बी मैंने शायद पहले डिग्रेडेशन बाय मिस्टेक कुछ और भूल गया होगा, बट डिग्रेडेशन मीन्स क्या होता है? उस चीज फिनिश कर देना, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन कर करके हम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म करें। ओवर ग्रेजिंग करवाना एनिमल्स की, ओवर यूज करना केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का, रेन वॉश हो जाना लैंडस्लाइड और फ्लड की वजह से, सब मेथड। अब हमने पढ़ लिया रीजंस की डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल कैसे हो रही है, खत्म कैसे हो रही है हमारी सॉइल। अब हम पढ़ेंगे सॉइल को कंजर्वेट कैसे करें, ठीक है। मल्चिंग से, मल्चिंग क्या होता है? द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चराइजर। तो गीली मिट्टी में एक वो होता है ना, छिलके टाइप से लंबी लंबी टहनियां टाइप से होती है, वो क्या होती है हमारी? वो एक स्ट्रॉ टाइप स्ट्रक्चर में होती है, जो कि हमारी सॉइल के मॉइस्चर को रिटेन करके पकड़ के रखती है। कंटोर बैरियर, कंटोर बैरियर मीन्स स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड barrier along contours. Trenches are made in front of the barriers to collect water. कुछ basic trenches हम contour barriers को हम कैसे use करते हैं, अगर मैं आपको इसको proper एक इसकी अगर मैं आपको एक definition अभी बताती हूँ
कि प्रॉपर डेफिनेशन इसकी क्या होती है। बेसिकली कंटोर हमारा जो होता है, हम उसको बेसिकली अगर हम उसको कंटोर बैरियर में स्टोन्स, ग्रासेस, सॉइल ये सब यूज होता है ताकि हम एक बैरियर एक बिल्ड कर पाए, ताकि जो हमारी सॉइल है वो हम जो उसका मतलब कि उसका जो यूज है वो रिड्यूस हो पाए सॉइल इरोजन में। मैं इसको थोड़ा और ब्रीफ में बताती हूँ। अ कंटोर बैरियर इज अ सॉइल इरोजन कंजर्वेशन मेथड used to reduce soil erosion particularly on sloping land. sloping land मीन जो स्लाइडिंग लैंड्स होते हैं, स्लोप्ड लैंड्स होते हैं, जहाँ पे स्लोप्स लोकेटेड होते हैं, हम वहां पर एक कंटोर मीन्स एक लेयर खड़ी कर देते हैं ताकि जो हमारी सॉइल है वो खराब ना हो और उसका इरोजन ना हो। रॉक डैम क्या, रॉक्स आर peeled up to slow down the flow of water. This prevent the gilts and further soil loss. रॉक्स क्या होते हैं, सॉइल के ऊपर रॉक्स का अगर हम एक बैरियर बना दे तो नीचे की जो सॉइल है वो ज्यादा फ्लो आउट नहीं होगी वाटर के साथ, ताकि जो वो सॉइल है वो लॉस ना हो उसका हमें। ट्रेस फार्मिंग, broad flat steps or traces are made up the steps slope so that flat surface are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion। इनकी मदद से ट्रेस फार्मिंग क्या होती है, ये ट्रेस फार्मिंग जिसे हम बोलते हैं, जब हम लाइक अगर मैं बताऊं आपको, मोरनी हिल्स में भी ना ऐसे ही बना हुआ है, जहां पर एक हम एक थोड़ा सा एक फ्लैट सरफेस लेते हैं, फिर उसके ऊपर फ्लैट्स बना देना, मतलब कि जैसे सीढ़ियां होती है ना, वो एक स्ट्रक्चर बना देना उस चीज को। कंटोर की भी यहाँ पे कंटोर प्लोइंग भी दे रखी है कि उसका एक कलर टेक्सचर चेंज कर देना, ठीक है ठीक है। अब उसके बाद आता है इंटरक्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल एंड रेन वॉश। डिफरेंट एक लेयर्स बना देना कि इस लाइन में ये क्रॉप ग्रो होगी, इस लाइन में ये क्रॉप होगी, तो उसे हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग करना। कंटोर प्लोइंग ये आ गया, कंटोर प्लोइंग की कैसे एक लेयर हमने उसके ऊपर बना दी। प्लोइंग पैरेलल टू कंटोर ऑफ हिल स्लोप, जैसे हमने कंटोर बैरियर पढ़ा, वैसे कंटोर क्या होता है, कंटोर हिल स्लोप्स पे बना देना टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन फ्रॉम द स्लोप। एक नेचुरल बैरियर ही आ गया ना, ठीक है। शेल्टर बेल्ट्स क्या हो गए, ये बीच बीच में अगर आपने ट्रैवल किया होगा ट्रेन में तो आपने खुद देखा होगा खेतों के बीच में ना, जो हमारे जो हमारा जो हमारा ग्रोइंग एरिया जो होता है, कल्टीवेटेड लैंड होता है, उसके बीच में ऐसे कहीं कहीं जगह पे ना ड्राई रीजन्स पे, कोस्टल, जहाँ पे एक रोज ऑफ ट्री बना दी जाती है ताकि विंड की जो मूवमेंट है उससे हमारी जो सॉइल है वो प्रोटेक्ट हो, ठीक है। ये आपने देखा होगा, शेल्टर बेल्ट्स बोलते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट है वाटर। हमने कंजर्वेशन भी पढ़ लिया, डिग्रेडेशन भी पढ़ लिया, सॉइल भी पढ़ लिया, लैंड के यूजेस भी पढ़ लिया। अब हम चलते हैं किस पे, वाटर के बारे में। लैंड के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं सारा, सॉइल भी खत्म कर लिया, अब हम हमारा किस पे आ गया, हम वाटर पे आ गए। अब दो टॉपिक्स कौन से रह गए हमारे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो वाटर भी फटाफट फिनिश करते हैं। वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स। 3/4 of earth's surface is covered by water. This is therefore appropriately called water planet। ये तो हमें पता है, blue planet बोलते हैं हम। It was a primitive ocean that life began almost 3.5 billion years back. Even today, the ocean cover 2/3 of the earth's surface and support a rich variety of plant and animal life। ये तो आप लोगों को पता ही है कि कैसे वो plant life और animal life को protect कर रहा है हमारा वाटर, क्योंकि हमारे पास एक प्रिमिटिव सोर्स ऑफ ओशंस है, वाटर है, इसलिए हम उसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। द ओशन वाटर इज हाउएवर स्लाइन, स्लाइन मीन्स नमक, सॉल्टी है थोड़ा सा, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नहीं पीते ना हम उसको। फ्रेश वाटर अकाउंट ओनली अबाउट 2.7%। ये एक बहुत अच्छा इंटरनल है, एमसीक्यूज फॉर्म में आ सकता है कि जो हमारा फ्रेश वाटर है वो कितने परसेंट है, 2.7%। नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट, ठीक है, एंड ग्लेशियर इन अंटार्कटिका। 70% तो अंटार्कटिका में है, ग्लेशियर्स में, आइस फॉर्म में। ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन, ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर inaccessible. Only 1% of fresh water is available and fit for human use.
ठीक है, हमने पढ़ा फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 2.7%, बट उसमें से भी ओनली 1% ऐसा है फ्रेश वाटर जो कि फिट है किसके लिए, हमारे लिए, फॉर ड्रिंकिंग इट इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर। इनमें से कुछ ग्राउंड वाटर है जो हमारे ट्यूबवेल्स के नीचे से आता है, कुछ है हमारा सरफेस वाटर जो रिवर्स और लेक्स में है, कुछ है वाटर वेपर की फॉर्म में जो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, जो बारिश गिरती है। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट precious substance on earth. Water can neither be added nor subtracted from the earth. Its total volume remain constant. Constant है रहेगी water की, क्योंकि इतना देखो यार बारिश भी होती है और भी बहुत सारे सर्कमस्टांस है, तो इसलिए हम उसमें ना कोई वाटर ऐड कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं, ठीक है। its abundance only seem to vary because it is in constant motion, cycling through the oceans and the air, ठीक है, the land and the back again through the process of evaporation, precipitation and runoff। वाटर साइकिल पढ़ी है ना, वाटर साइकिल ही चलती रहती है, इसीलिए वाटर कैन नॉट बी एडेड और कांट बी subtracted, ठीक है। this as you have already known in refer to as water cycle मैंने अभी बताया। a dripping tap wastes, जो टप 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 पानी एक टूटी में से एक टैप में से गिरता है, वो कितना वेस्ट करता है, 1200 लीटर वाटर इन अ ईयर। तो इसीलिए अपने घर के टैप्स को प्रॉपरली रखना है। In 1975 the consumption of water for human use was 3850 cu किलोमीटर पर ईयर। cu क्या होता है, द मेजरमेंटिंग यूनिट ऑफ वाटर। इट snowed to more than 6000 in year 2000 ending। ये देखो 1975 में क्या था और 2000 में कितना बड़ा। नेक्स्ट आता है ह्यूमन यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग and washing but also in the process of production, water for agriculture industries, generating electricity through reservoirs of dams and other usage, increasing population, rising demand for food, cash crops, increasing urbanization, increasing standard of living are major factors that lead to shortage of supply of fresh water, either due to drying up the water resources or water pollution। कितनी तरीके से हम वाटर को यूज करते हैं, हर काम में तो पानी चाहिए होता है, तो इसीलिए हमें वाटर को थोड़ा सा ध्यान से यूज करना चाहिए ताकि हम उसकी वेस्टेज कम और उसे प्रॉपरली यूज ज्यादा कर पाए। क्योंकि ये वेस्टेज इतनी क्यों हो रही है, इतनी हम फैक्टर्स जो उनकी शॉर्टेज पे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक तो हम उसकी परवाह ही नहीं करते, जैसे मर्जी उसको यूज कर लेते, एक तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है। नेक्स्ट आती है हमारी कुछ प्रॉब्लम्स कि वाटर अवेलेबिलिटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन ऑफ वर्ल्ड, most of Africa, West Asia, South Asia, part of Western USA, Northwest Mexico, part of South America, and entire Australia are facing the shortage in fresh water. Countries located in climate zone most suspectly to drought face great problems of water scarcity. Thus, water storage may be consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploiting and contamination of water resources. Contamination means मिलावट होना, contaminate खराब हो जाना, मतलब गंदा हो जाना पानी, contaminated होना, उसके अंदर पार्टिकल्स, अनवांटेड पार्टिकल्स एंटर हो जाना, इसकी वजह से हमें वाटर की अवेलेबिलिटी में काफी कंट्रीज में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों, क्योंकि हम पानी को वेस्ट भी तो बहुत करते हैं, खराब भी तो करते हैं। अगर हमें हमें नॉर्मल सा अगर हमारा काम अपने घर में मोपिंग करके हो जाता है, तो वाई वी आर वॉशिंग आवर फ्लोर्स रेगुलरली विद वाटर, if we can use only half bucket of water by wetting one piece of cloth and do the mopping of the floor, why we are wasting our water in washing of the floors, ठीक है। सो इसीलिए अवेलेबल वाटर की स्कार्सिटी हो रही है।
कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज क्या है? एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, ये तो मैंने अभी बताया. स्टेप्स हैज टू टेकन टू कंजर्व द ड्विलिंग रिसोर्स. ड्विलिंग मीन्स जो डिप्लीट हो रहा है, खत्म होता जा रहा है. इवन दो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, चाहे पानी, वाटर जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो अनलिमिटेड है, वो रिन्यूड हो जाएगा. इवन तब तब भी हमें उसका ओवर यूज और पॉल्यूशन उसके अंदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसका यूज जो है अनफिट हो जाएगा. आप खुद देख लो, फिल्टर पानी पी रहे हैं हम, तो अनफिट हो रहा है ना वो धीरे धीरे करके. डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्टिकुलेटेड ट्रीट सीवेज, एग्रीकल्चर, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल effluents in water bodies are major contaminants. अभी हमने पढ़ा कि वाटर की प्रॉब्लम अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी एक प्रॉब्लम क्यों बन गई है? क्योंकि वाटर स्कार हो रहा है. और स्कार क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक तो ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है और ऊपर से कंटेमिनेट हो रहा है. दे पॉल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट एंड मेटल एंड पेस्टिसाइड. ये तो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, इसीलिए हमें अपने वाटर को कंजर्व करना. ठीक है. मोस्ट ऑफ दीज केमिकल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो धीरे से हमारी उसके अंदर डिप्लीट, जो मतलब कि जो मिल नहीं जाते, घुल मिल नहीं जाते सॉइल में, उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल. जो जैसे थे वो हजारों साल बाद भी वैसे ही रहेंगे. And reach human bodies through water. Water population can be controlled by treating these effluents suitable before releasing them in water bodies. हमें पहले इनको ट्रीट करना चाहिए. ट्रीट मीन्स आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हम गंदे पानी को भी फ्रेश वाटर बना सकते हैं. ठीक है. एफ्लुएंट्स को ट्रीट करने से ही हम अपने वाटर की कंटेमिनेशन को रोक पाएंगे. फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कम स्लो the surface run off and replenish underground water. Water harvesting is another method to save our surface water. ठीक है. रन ऑफ ये तो हमें पता है. ठीक है. द कैनाल्स आर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर सीपेज. सीपेज मीन्स आप अपनी केटल्स को लेके कैनाल्स में मत नहलाओ. ये भी एक वाटर की कंटेमिनेशन ही तो हुई ना. इससे वाटर गंदा हो रहा है, क्योंकि उनके ऊपर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो ऊपर गंदी जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है वो उनके ऊपर लगे हुए, इसीलिए क्या हो रहा है? वाटर गंदा हो रहा है. स्प्रिंकल इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन. ऊपर भी एक लाइन में लिखा हुआ था कि हम अपने लैंड को इरिगेट करने के लिए कैनाल का यूज क्यों कर रहे हैं, सीपेज क्यों बना रहे हैं. स्प्रिंकल इरिगेशन से भी तो हो सकता है ना, वो ज्यादा इजी है. इन ड्राई रीजन with high rate of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. The valuable water resource can therefore be conserved by adopting these means of irrigation. Irrigation अगर हमारी अच्छी होगी तो हम वाटर को कंजर्व भी कर पाएंगे और अपने लैंड को प्रॉपर्ली फर्टाइल भी बना पाएंगे. नेक्स्ट हमारा है, ये है अब हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है, विच इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. अब बेसिकली आपको पता ही है बायोस्फीयर क्या है, इकोसिस्टम क्या है. यू रीड इन अर्ली क्लासेस. ठीक है. आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है. तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ. ये स्टोरी एक बहुत ही मतलब कि एग्जीबिशन में विजिट करते हैं. ठीक है. ब्यूटीफुल हैंड बैग्स होते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो लैम्प वगैरह इन सब चीज़ों से, तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का कैसे यूज़ करा हुआ है वो सब उसमें एक्सप्लेन करती है टीचर. यू गाइस कैन रीड इट. एक यहाँ पे डू यू नो में रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी दिया हुआ है, कलेक्टिंग वाटर करना, ताकि रेन का जो वाटर है उसे कलेक्ट करना, उसे एक डेली क्योस वर्क के लिए यूज करना, दैट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अब हम चलते हैं. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, दैट वी कॉल्ड बायोस्फेयर. व्हेन थ्री स्फीयर्स of earth meet then it is called biosphere. वो तीन जोन कौन से हैं हमारे? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर. जब मिल जाए तो अपने क्या बोलते हैं? बायोस्फेयर. in the biosphere living being are interrelated and interdependent on each other for surviving. ये तो हमें पता है. बायोस्फेयर में अगर आप रह रहे हो तो आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, इंटररिलेटेड हो. ठीक है. सर्वाइवल के लिए द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम. जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम क्या है वो क्या है? इकोसिस्टम. या बायोस्फीयर और इकोसिस्टम की यहाँ से डेफिनेशन अच्छे से लर्न भी करोगे और अंडरलाइन. प्लांट्स सॉरी
वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। वेजिटेशन भी जरूरी है, नेचुरल वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स की वेजिटेशन, चीज़ों की वेजिटेशन करना, और वाइल्ड लाइफ भी बहुत जरूरी है, फ्लोरा एंड फौना ही बोल सकते हैं। प्लांट प्रोवाइड अस टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोवाइड ऑक्सीजन वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट सॉइल, so essential for growing crops, act as shelter belt, help in storage of underground water, gives us fruit, nuts, lactose, tuppence, oil, gum, medical plant, and also the paper that is so essential for your studies. There are innumerable use of plants and you can add some more. प्लांट्स के तो आपको पता ही कितने यूज हैं, ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं ये भी तो प्लांट्स की मदद से बनी है। पेपर कैसे आया? प्लांट से आया ना, तो इसीलिए प्लांट्स के तो अनलिमिटेड यूजेस हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, hides and wool. Insect like bees provide us honey, help in pollination of flower, and have an important role to play as decomposers in the ecosystem. The birds feed on insects and act as decomposer as well. Vulture, due to the ability to feed on dead livestock, is a scavenger and consider a vital cleanser of environment. So animals, big or small, all are integral to maintaining balance in ecosystem. अभी मैंने आपको बताया इकोसिस्टम क्या होता है, रिलेशनशिप मेंटेन करना, इंटरकनेक्टेड। अब वाइल्ड लाइफ क्या है? वेजिटेशन के बिना वाइल्ड लाइफ नहीं चल सकता, वाइल्ड लाइफ के बिना वेजिटेशन नहीं चल सकता, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे? आपने फूड साइकिल पढ़ी हुई है, फूड चेन पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपने, अगर मैं आपको एक सिंपल सा बताऊं तो आपने क्या पढ़ा हुआ है? आपने फूड चेन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ। फूड चेन आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। वहां पे क्या होता है? पहले ग्रास होती है, ग्रास को कौन खाता है? ग्रास ओपर, ठीक है। ग्रास ओपर को कौन खाता है? ठीक है, फ्रॉक, फ्रॉक को कौन खाता है? स्नेक, स्नेक को कौन खाता है? वल्चर। यहाँ पे वही तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। वल्चर क्या है? डेड डिकेइंग एनिमल से एनर्जी ले रहा है ना, ठीक है। मरी हुई, अगर मान लो कहीं उसको एक डेड स्नेक दिख जाता है तो वो उसे भी ईट कर लेता है, तो डेड डिकेइंग से भी डिकम्पोजर हुआ ना वो, जो हमारे डेड डिकेइंग चीजों को भी खा लेता है, ठीक है। अब ग्रास ऊपर है, कोई प्लांट मान लो खराब सा हो रहा है, डेड है वो, ठीक है, उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं है, उसको भी खा लेगा, तो वो भी क्या है? डिकम्पोजर हुआ। उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर। जो डेड लाइफ स्टॉक की एबिलिटी जो उसके अंदर होती है उसको भी फीड कर लेते हैं, ठीक है, वो क्या हुआ? मैं स्कैवेंजर हुआ। अब आता है distribution of natural vegetation. The growth of vegetation depend on primarily temperature and moisture. The major vegetation type of the world as grouped as forest, grassland, scrubs and tundras, ठीक है। In areas of heavy rainfall, huge trees may thrive. The forest as the thus associated with area having abundant water supply. As the amount of moisture decrease, the size of trees and their density reduce. Short stunt trees and grasses grow in the region of moderate rainfall, forming the grassland of the world. Theron shrubs, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन इसमें वो बता रहा है कैसे कैसे हमारी वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूट हुई, कैसे कैसे एरियाज में हैवी रेनफॉल में, माइल्ड रेनफॉल में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही बता रहा है कि कैसे वो हुआ, लो रेनफॉल में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, डीप रूट्स लिविंग विद थ्रॉनी एंड वेवी सरफेस, रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ये सब, ठीक है। अब हम जो टुडेज वर्ल्ड में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे नंबर ऑफ लार्ज एरियाज में फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, ठीक है, टू ग्रो, मतलब कि बेसिकली हम वैनिश कर रहे हैं अपनी वाइल्ड लाइफ को, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं, हमारे काफी एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। हमारी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ को उससे बहुत नुकसान हो रहा है। अब इसमें आता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, हम उनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं।
फॉरेस्ट आर आर वेल्थ, ये तो हमें पता है कि फॉरेस्ट अगर है तो उसकी मदद से हमें सब कुछ मिलेगा. प्लांट्स गिव शेल्टर to the animals and together they maintain a ecosystem, ये हमने सारा भी पीछे पढ़ा. Changes of climate and human interference can cause the loss of habitats for the plant and animals. Many species have become vulnerable or endangered and are some are on the verge of extinction. मैंने अभी जस्ट यही बताया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से और ह्यूमन के इंटरफेरेंस की वजह, बेसिकली क्लाइमेट के किसकी वजह से चेंज हो रहा है, ह्यूमंस की वजह से. एसीज चल रहे हैं, एसीज जो रिलीज कर रही है वो कौन सी गैस रिलीज कर रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है. बट हमारी ह्यूमन नीड्स की वजह से हमारे फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, जो कि हमारी वेल्थ है. हमारे एनिमल्स क्या होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. डिफॉरेस्टेशन हो रही है, सॉइल इरोजन हो रही है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड और भी बहुत चीजें, नेचुरल फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से हमारा जो प्रोसेस extinction of these resources. ठीक है. One of the major concern is the poaching which result in a sharp decline in number of particular species. बिल्कुल खत्म होती जा रही, कुछ ऐसी स्पीशीज तो है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है. क्यों? क्योंकि हम उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, इसीलिए वो खत्म होती जा रही है. The animals are poached for collection and illegal trade of hides, skins, nails, teeth, thorns as well as feathers. पोचिंग बेसिकली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो पोचिंग क्या होता है, जब हम एनिमल्स को उनकी स्किन के लिए, उनके टीथ्स के लिए, उनके नेल्स के लिए उनको हम मार देते हैं अपने मतलब के लिए, दैट इज अ पोचिंग. अब हम कहते हैं ना कई ऑर्नामेंट्स मीन्स ज्वेलरीज जो एनिमल, जो एलिफेंट के टीथ से बनी है वो कितनी महंगी बिकती हैं. हम उनको अपने फायदे के लिए, उन एनिमल्स को क्या होना पड़ा है, वो खत्म होते जा रहे हैं, डिस्टिंक्ट होते जा रहे हैं, मिल ही नहीं रहे हैं. ठीक है. Some of these animal, tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ये सब क्या हो गए हैं, दिखते हैं आजकल कहीं कहीं नहीं दिखते, खत्म होते जा रहे हैं. These can be conserved by increasing awareness. नेशनल पार्क्स में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वहां पर हम इनको बचा पा रहे हैं, अदरवाइज तो ये खत्म होते जा रहे हैं, बिल्कुल भी है ही नहीं है ये कहीं पे. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रहे हैं इनके लिए हम, तभी ये एनिमल्स बच रहे हैं, वरना लोग इन्हें पोचिंग करके, इनका शिकार करके इनको मार रहे हैं, इनको खत्म कर रहे हैं. कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स, wetlands is necessary to save the precious resources from depletion. कई चीजों को बचाने के लिए हमें काफी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं. There is a balance in the environment. If the relative number of species is not distributed, human activities in several parts of the world have distributed the natural habitats of many species. Due to indiscriminate killing, several birds and animals have either become extinct or on the verge of extinction. ये तो भी पढ़ा, अपने फायदे के लिए हम उनको खत्म करते जा रहे हैं, उनका बिल्कुल भी हम नहीं सोच रहे, हम अपने वेल्थ को, अपनी अच्छी सी लाइफ को खत्म करते जा रहे हैं. अवेयरनेस प्रोग्राम्स, अब इन चीजों को बचाने के लिए देखो बड़े बड़े नेशनल पार्क्स बने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी है, जिम कॉर्बेट है, राजाजी नेशनल पार्क है. ठीक है. बड़े बड़े नेशनल पार्क्स हैं जिसकी वजह से हम इन एनिमल्स को बचा पा रहे हैं ताकि ये अपनी लाइफ बहुत हेल्थीली, बहुत अच्छे से जी पाए. ठीक है. Social forestry and one more utsav should be encouraged at a regional and community level. School children should be encouraged to bird watch and visit nature camps so that they appreciate the habitat of variety of species. हम इन चीजों को appreciate करने के लिए कहाँ जाते हैं, एक नेचुरल ब्यूटी है ये जो नेचर ने क्रिएट किया है, गॉड ने क्रिएट करके दिए हमें. एनिमल्स भी सुंदर सुंदर, इतनी सुंदर बर्ड्स होती है, हम कहाँ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाते हैं ना इन चीजों को देखने, जू में जाते हैं. ठीक है. Many countries have passed law against the trade as well as killing of birds and animals. आपने केस सुना होगा सलमान खान वाला, ठीक है, जो बग वाला हुआ था, ब्लैक बग वाला. तो हमारी कंट्री ने भी कुछ लॉज पास किए हैं कि अगर हम बर्ड और एनिमल्स को मारते हैं तो कुछ एक्ट के तहत हम लोगों को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी. इन इंडिया किलिंग द लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्स एंड पीकॉक इज इलीगल, ये तो पता है. And international conventions, cities have been established that list several species of animal and birds in which trade is prohibited.
कुछ हमारे सिटीज एक हमारा एक एक्रोनिम है एक चीज का, जिसकी वजह से हमारी, जिसकी मदद से हमारी मतलब कि कुछ बर्ड्स और एनिमल्स को हम ट्रेड नहीं कर सकते उनके बिहाफ पे। अब सिटीज की फुल फॉर्म आप सब नोट कर लो, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसके ऊपर आप कई एनिमल्स के ऊपर ये बना हुआ है, आप इनके ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। प्लांट्स और एनिमल्स को बचाना ये एक सिटीजन की मॉरल ड्यूटी है। नेशनल पार्क मैंने आपको बताया क्या होता है, a natural area designated to protect the ecological integrity of one or more ecosystem for the present and the future generations। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स भी पता है क्या होते हैं, सीरीज ऑफ प्रोटेक्शन एरिया लिंक्ड थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क इंटेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। बायोस्फीयर रिजर्व मींस जहां पर हम जो वो कम्युनिटीज हमने बनाई हुई है, जो इंटरकनेक्शन बनाया उसको रिजर्व करने के लिए हमने एक जगह बनाई थी जिसको हमने नाम दिया बायोस्फीयर रिजर्व करना, बचाना। ठीक है, यहाँ पे देखो सिटीज का एक्रोनिम भी लिखा हुआ है। ठीक है, वो कब बना था, कैसे बना था, किस पे फिक्स है, ये सब मेंशन है, यू गाइस कैन रीड इट। So that's the end of the chapter. Thank you so much guys, must watch this video. This is a little bit a lengthy chapter but too much important chapter. So please do like, share and subscribe my channel. We will meet in next video. So till then, stay safe and stay happy. Bye.